theory of psychosocial development relates to the interaction of psychological development and the social environment. यानी कि आपका social environment के साथ जिस तरह over the lifetime interaction होता है, how does it basically result in psychological development? So this theory is basically going to study two domains of human development, two aspects of human development, one psychological and the other one social. आपके social development के साथ साथ किस तरह आपकी psychological development होती है and how the two impact one another. This theory was presented by Erik Erikson, and Erik Erikson is basically known as is best known for the theories of personality, and in psychology he believed that personality develops in a series of stages. 8 stages of development Erikson ने इस theory में दी हुई हैं. In every stage he describes how the social experiences of that particular stage affect your personality and have an impact on you. And this particular stage he has divided the whole lifespan into 8 stages. हर स्टेज थ्योरी में एक इसका जो स्टेज थ्योरी का पर्टिकुलर एक एलिमेंट है जो मेन एलिमेंट है दैट इज ईगो डेवलपमेंट एंड बेसिकली डेवलपमेंट जो आप ईगो आइडेंटिटी की करते हैं. ईगो आइडेंटिटी इज द कॉन्शियस सेंस ऑफ सेल्फ दैट वी डेवलप थ्रू सोशल इंटरेक्शन. आप जिस तरह इंटरेक्ट करते हैं आप उस तरह से अपनी ईगो को शेप करते हैं, आप अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं एंड अपनी सेल्फ को बेसिकली यू अंडरस्टैंड योर सेल्फ, आप अपनी सेल्फ परसेप्शन डेवलप करते हैं व्हिच इज इन a sense known as ego identity. According to Erikson, हमारी ego identity जो है वो continuously change होती है, वो fluid है. As we acquire new experiences, हम जिस तरह नई information सीखते हैं अपने daily interactions की वजह से, उसके साथ साथ हम different अपनी ego identity के मतलब we develop a sense of competence or we develop some actions and behaviors. हम चीज़ों को adopt करते हैं या हम उनको छोड़ देते हैं, abandon कर देते हैं. So this is all a part of shaping your ego identity and it is continuously changing. वो fluid form में है, it's not crystallized. Each stage of Erikson's theory is concerned with becoming competent in an area of life. Each stage builds upon successful completion of earlier stages. यानी कि आप जब previous stages को develop कर लेंगे completely, आप उनको successfully complete करेंगे, then you may be able to move into the next one. अगर एक स्टेज अच्छी तरीके से हैंडल हुई है, आपने उसमें एक आफ्टर लाइक एट द एंड ऑफ दैट स्टेज यू डेवलप अ सेंस ऑफ मास्टरी, तो आप इसका मतलब है कि आप उसमें अचीव कर गए हैं, आपकी कॉम्पिटेंस डेवलप हुई है. लेकिन अगर it has been managed poorly, the person will emerge with a crisis. Crisis यहाँ पे he refers to crisis as a word for problems जो कि आपकी personality में आती हैं और उस चीज़ की वजह से आपके complexes shape up होती हैं जो कि आगे आपकी future में they affect your actions, they affect your behavior, they have an impact on your personality and obviously they have an impact on your life. So basically आपका हर स्टेज जो है, हर स्टेज की सक्सेसफुल कंप्लीशन या फिर उसकी अनसक्सेसफुल कंप्लीशन either makes you more competent in life or it gives you a complex that you have to deal with. So every stage serves as a turning point. First stage that we have to discuss is trust versus mistrust. For example, यहाँ पे हम जो बात करेंगे, अब एरिक्सन ने full lifetime को divide किया है into 8 stages of development and हम अगर इसको देखें, first stage obviously will have to start at the time of birth. From the time of birth till 18 month हम इसको discuss करेंगे कि how a baby develops trust or mistrust. Basically, the question at hand is, can I trust the world? The first stage is basically infant की basic needs जो होती हैं, they have to be met by the parents and the parents and child they interact. सारा का सारा time जो है एक infant का, एक baby का, it is spent with the parents and parents के साथ अगर अच्छा उसका एक attachment establish हो जाता है तो the child develops trust. अब यहाँ पे attachment जो है वो 2 types की होती है. Either it is a secure attachment or it is an insecure attachment. Secure attachment का मतलब ये है कि the child trusts the parent, यानी कि उसको पता है कि उसकी जो भी needs हैं वो पूरी कर रही हैं and the child will develop trust automatically because आपकी attachment जो है बच्चे के साथ वो secure बन चुकी है. इनसिक्योर अटैचमेंट या अनसिक्योर अटैचमेंट आपकी उस टाइम पे बनती है जिस टाइम पे आप अपने चाइल्ड की नीड्स को केटर नहीं कर रहे एंड बिकॉज ऑफ दैट द चाइल्ड इज नॉट डेवलपिंग एनी सॉर्ट ऑफ अटैचमेंट विद यू. द चाइल्ड इज डेवलपिंग अ सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी एक्चुअली एंड उसकी वजह से द चाइल्ड इज अनएबल टू ट्रस्ट यू एंड इन दैट काइंड ऑफ अ सिनेरियो बच्चे के अंदर मिसट्रस्ट डेवलप हो जाएगा. Now to come out of this stage in a good psychological health, अब इसका एक जो बेहतरीन optimum इसका है to conquer the states is that the child must achieve a proper balance of trust
rather than mistrust. यानी कि वो ट्रस्ट करेगा तो उसका इफेक्ट बेसिकली क्या है कि these things affect the future life attachments and future relationships as well. यानी कि if the trust predominates, child will develop a virtue of hope, यानी कि the belief कि उनकी जो भी needs होंगी they will be met, उनके जो wishes हैं वो पूरी होंगी, वो world को as इस तरह से व्यू करेगा कि the world is there where he can go and fulfill his or her wishes. यानी कि society will basically he has a positive view of the world. Like, the world is there for me. Why? Because the child was dealt with warmth, उसको regularity provide की गई थी, उसके जितने भी needs थे उनको देखा गया था, and the child knew that he can depend on the parents. ठीक है. अब ट्रस्ट की वजह से ट्रस्ट ही डेवलप होता है तो द चाइल्ड बेसिकली जो आप बिल्कुल इनिशियल फेजेस में देखें बेबी डज नॉट लेट द मदर लीव हिज और हर साइड, लेकिन एज द ट्रस्ट डेवलप्स द चाइल्ड अंडरस्टैंड्स कि द मदर नीड्स टू अटेंड टू अदर थिंग्स एज वेल, एंड देन द चाइल्ड डज नॉट गेट फसी जिस टाइम पे माँ पास नहीं होती. ठीक है. लेकिन जिस टाइम पे उसको ये भी पता होता है कि इफ आई विल हैव एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स माय मदर विल बी देयर टू टेक केयर ऑफ माय नीड्स इफ आई एम हंग्री, इफ आई एम, बिकॉज चाइल्ड का एक जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन होता है वो क्राइंग होती है. ठीक है. द चाइल्ड कम्युनिकेट्स विद क्राइंग और विद कूइंग, या अपने वो इंटरेक्शन या अपनी फिजिकल लाइक सेंसरी मोटर एक्टिविटीज के साथ कम्युनिकेट करता है व्हाटएवर ही और शी नीड्स टू कम्युनिकेट. उसको जब ये सेंस डेवलप हो जाए कि माय एक्शंस विल बी इंटरप्रेटेड बाय माय पेरेंट्स और बाय माय मदर, and एक जो attachment है वो secure है, then the child will know that the mother will be there for any thing that he needs. यानी कि the trust enables an infant कि वो अपनी माँ को अपनी साइड से आसपास से हटने दे सकता है. अच्छा, now when the sense of trust is developed, secure attachment बन चुकी होती है, उस टाइम पे the sense of trust actually extends further है, यानी कि जो आपके उसके बाद जो क्लोज रिलेशंस हैं उनमें जाती है. योर सिबलिंग्स, योर रिलेटिव्स दैट आर लिविंग विद यू, यानी कि जो आपका इमीडिएट एनवायरनमेंट है वहां पे वो ट्रस्ट की एक एनवायरनमेंट कायम कर लेते हैं. यानी कि अटैचमेंट, अब अटैचमेंट जो होती है इट इज शोन बाय स्माइलिंग एंड बैबलिंग, या फिर माँ के ऊपर जो क्लाइंब करते हैं बच्चे, या किसी भी सिक्योर अटैचमेंट जिसके साथ उसकी होती है, तो चाइल्ड वेरी इजीली गोज टू दैट पर्सन. लेकिन इसी तरह से अगर सिक्योर अटैचमेंट नहीं होती तो उसकी जो क्राइम बिहेवियर है, जिसका फसी बिहेवियर है, या जो बच्चा टैंट्रम्स शो करता है, दोज आर द वेज टू अंडरस्टैंड दैट द चाइल्ड इज नॉट कंफर्टेबल, द चाइल्ड डज नॉट ट्रस्ट द सोशल एनवायरनमेंट एट हैंड इस टाइम पे. अगर पेरेंट्स जो है वो सिक्योर एनवायरनमेंट नहीं प्रोवाइड कर पाते अपने बच्चे को, एंड बेसिक नीड्स जो है वो नहीं उनको तरीके से सेटिस्फाई कर सकते, द चाइल्ड डेवलप्स अ सेंस ऑफ मिसट्रस्ट, और इसकी वजह से क्या होता है कि द चाइल्ड व्यूज द वर्ल्ड एज हॉस्टाइल, अनफ्रेंडली, इट व्यूज द वर्ल्ड अगेंस्ट हिम. उसको लगता है कि द वर्ल्ड इज नॉट इनफ, द वर्ल्ड इज नॉट सफिशिएंट इनफ टू कंप्लीट टू केटर टू हिज और हर नीड्स. ठीक है. जिस टाइम पे मिसट्रस्ट डेवलप हो जाता है, इट लीड्स टू ट्रबल्स इन डेवलपिंग एनी सॉर्ट्स ऑफ रिलेशनशिप्स. आप किसी भी तरह का रिलेशनशिप डेवलप नहीं कर सकते, और जो डिसअपॉइंटमेंट्स होती हैं उनको आप बहुत ज्यादा, जिसको आम ज़बान में कहते हैं कि दिल पे लेते हैं, ये वो वाली पर्सनालिटी डेवलप करने में इनकी वजह से होती है. यानी कि डेवलपमेंट ऑफ मिसट्रस्ट कैन लीड टू फीलिंग्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन, सस्पिशन, विथड्रॉल एंड अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस. मूविंग ऑन, जो आपकी सेकंड स्टेज है साइकोसोशल डेवलपमेंट की, इट इज ऑटोनॉमी वर्सेस शेम. इट स्टार्ट्स फ्रॉम 18 months and it lasts till 3 years. The main question at hand in this stage is it okay to be me? यानी कि as the child gains control over eliminative functions and motor abilities, they begin to explore their surroundings. अब यहाँ पे जो बच्चा है वो एक little scientist है. The child is like a little explorer. The child wants to see what he has in his environment. बच्चा जिस टाइम eliminative functions का मतलब टॉयलेट ट्रेनिंग, एंड मोटर एबिलिटीज का मतलब ये कि जब बच्चा क्रॉलिंग करना स्टार्ट करता है एंड इवेंचुअली ही गेन्स एक जब कॉम्पिटेंस डेवलप कर लेता है इन हिज मोटर एबिलिटीज और वो वॉकिंग स्टार्ट कर देता है. अच्छा, तो जिस टाइम पे बच्चे को क्रॉलिंग बिहेवियर स्टार्ट होता है, चाइल्ड स्टार्ट्स एक्सप्लोरिंग. वो हर चीज को पकड़ के देखता है, उसको एनालाइज करता है, और वो उस चीज के बारे में एक अपना एक सेंस डेवलप करता है. अब यहाँ पे इफ द चाइल्ड, अब आगे हर स्टेज में आप देखते रहेंगे कि बच्चा जो है प्रीवियस स्टेज को अगर सक्सेसफुली ओवरकम कर रहा है, कॉम्पिटेंट होकर वहां से निकल रहा है, तो अगले स्टेज में भी वो पॉजिटिविटी की तरफ उसका ज्यादा इंक्लिनेशन होगा. नाउ अब आप अगर चाइल्ड ने ट्रस्ट डेवलप किया था, द चाइल्ड विल हैव अ वेरी स्ट्रांग बेस ऑफ सिक्योरिटी, और उसकी वजह से द चाइल्ड विल
basically be very much keen in observing the environment and exploring it, और वो autonomy develop करना start कर देगा. अब फ्रॉइड की तरह से एरिक्सन का भी था ये कहना कि जो टॉयलेट ट्रेनिंग है दैट इज अ वाइटल पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस, यानी कि जिस टाइम पे आप अपने बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करना सीखते हैं तो इट लीड्स टू अ फीलिंग ऑफ कंट्रोल एंड इंडिपेंडेंस. आप ऑटोनमस होना चाहते हैं, आप इंडिपेंडेंस की तरफ जाना स्टार्ट करते हैं एंड आप मेच्योरिटी की तरफ यानी मैच्योरेशन की तरफ जाना स्टार्ट करते हैं. जिस तरह से यानी कि द चाइल्ड ही लर्न्स कि उसके डेवलपिंग मसल्स जो हैं उनको वो जिस टाइम कंट्रोल करना स्टार्ट कर देगा तो वो अपने आप को वो मास्टर कर सकता है, चलने की स्किल को अपने आप को खिला पिला सकता है आराम से, अपने कपड़े खुद बदल सकता है, यानी कि वो अपनी बाउंड्रीज को एक्सप्लोर कर सकता है. जिस टाइम बच्चा ये ऑटोनॉमी डेवलप कर लेता है तो फिर वो अपनी वो बेसिकली कॉन्फिडेंस पे डेवलप करना स्टार्ट करते हैं, वो ऑटोनोमस होना स्टार्ट हो जाता है. Now, during this stage, the virtue of the will emerges, यानी कि the growing power to make one's own decision, to apply oneself to tasks and to use self-restraint. The child who successfully completes the stage feels secure and confident. यानी कि जो बच्चा इस stage के by the end of the stage यानी कि on reaching 3 years of age वो autonomous हो चुका हुआ है, the child will be एक तो ये कि trust develop था already, the child is secure, and जिस time उसने ये independence ये autonomy develop कर ली, the child will be confident. To strike the proper balance, children need the right amount of control from adults, neither too much control nor too little. So just too much control जो होता है that basically leads to a rebellious kind of a personality. जो बच्चा होता है वो हर rules को, हर किस्म की restrictions को वो तोड़ने के चक्कर में रहता है, and क्योंकि आप the child basically wants to control his environment at that particular time. लेकिन जिस टाइम पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होगा उस टाइम पे जो है द चाइल्ड विल बेसिकली मतलब आप दोनों सिनेरियोज में देखें तो आपने बेसिकली जो केयर गिवर्स हैं, जो पेरेंट्स हैं, जो एडल्ट्स हैं, उनका बेसिक काम ये है कि दे हैव टू गिव the child a proper balance. Obviously they need to make sure that the child is secure. अगर आप too little control करेंगे तो the child will not feel secure enough. He will feel कि he's all on himself. तो उस चीज को भी हमें अवॉइड करना है और हमने ये भी देखना है कि जो बच्चा है वो अपने आप को एक्सप्लोर भी करे, वो इंडिपेंडेंट भी हो जाए, वो अपनी ऑटोनमस आइडेंटिटी डेवलप करना स्टार्ट कर जाए. तो अब जिस तरह से देखो, the child the fear of losing may fill them with inhibitions, doubt and shame. In Erickson's terms, failure to achieve autonomy evokes shame manifested in the feelings of worthlessness and incompetence. यानी कि जिस टाइम पे बच्चे को आप कुछ नहीं करने देते, अक्सर आप लोगों ने नोट किया होगा, अक्सर पेरेंट्स जो हैं वो बिकॉज दे आर वेरी मच कीन कि बच्चा जो है वो सिक्योर है, बच्चे को किसी किस्म की कोई तकलीफ ना हो, इस बहुत ज्यादा सेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की वजह से बच्चे को खुद कुछ नहीं करने देते. एंड व्हेन दैट काइंड ऑफ थिंग हैपेंस, बच्चा कुछ करता है अगर तो उस टाइम पे उसको या तो डांट दिया जाए या उसको रोक दिया जाए या उसके एकदम से डांट दिया जाए, एक झिड़क दिया जाए जिसे कहते हैं बहुत जोर से, तो वो बच्चा जो है वो उस टाइम पे शेम की फीलिंग्स डेवलप करता है. और जब वो शेम की फीलिंग्स डेवलप कर लेता है तो द चाइल्ड फील्स वर्थलेस, यानी कि उसको लगता है कि मैं शायद इस काबिल नहीं हूँ कि मैं ये काम कर सकूँ, या मे बी आई डू नॉट हैव द एबिलिटी टू डू दीस थिंग्स, इस वजह से मुझे करने नहीं दिया जा रहा. तो द चाइल्ड मस्ट बी गिवन अपॉर्चुनिटीज टू एक्सप्लोर द एनवायरनमेंट, द चाइल्ड मस्ट बी गिवन दैट काइंड ऑफ कंट्रोल कि वो अपना काम खुद भी कर सके, यानी कि वो ऑटोनॉमी डेवलप करे. अब जिस टाइम पे बच्चा एग्रेसिव होना स्टार्ट होता है, जिस टाइम पे बच्चा शेम डेवलप कर रहा होता है, तो द टॉडलर सेज नो टू सजेशंस और बीइंग प्लेनली नेगेटिविस्टिक, going limp all over, running away or having a tantrum. आप अक्सर छोटे बच्चों को देखते हैं तो वो अपने पेरेंट्स को लेके, कोई अगर बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग पेरेंट्स हो तो चाइल्ड जनरली सेज कि नहीं मैं कुछ now I remember there was a child हमारे घर पे छोटी सी, she was a baby, she was a toddler, and we asked her कि उसको नींद आई थी and we said कि आप सो जाओ यहीं पे, तो she's like नहीं मेरी मम्मा मारेंगी. वो बच्ची को क्योंकि कंट्रोल ये था कि आपने घर में ही रहना है, आपने घर से बाहर नहीं जाना, आप कहीं और जा रहे हो तो आपने घर वापस आना, whatever you have to do you will do at home. तो उस सेंस की वजह से चाइल्ड अब्रप्टली सेड कि नहीं मेरी मम्मा मारेंगी. तो दैट काइंड ऑफ अ थिंग. अब बच्चे को जिस टाइम आप बहुत ज्यादा कंट्रोल देते हैं उस टाइम पे बच्चा इस तरह के जो बिहेवियर्स हैं उनको शो करता है कि वो बहुत ज्यादा नेगेटिव होते हैं, वो हर बात पे इनकार करते हैं, वो टेंट्रम्स शो करते हैं, वो एकदम से फंसी हो जाते हैं और बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं. तो ऑब्वियसली वी डू नॉट वांट दैट टू हैपन. अच्छा, स्टेज 3. अब स्टेज 2 से जब आप उसको
ओवरकम कर लेंगे प्रॉपर मैनेज करने के बाद, द चाइल्ड विल मूव ऑन टू स्टेज 3 व्हिच इज इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। ये स्टेज जो है स्टार्ट्स फ्रॉम 3rd year and extends to 6 years of life. Now the question at hand over here is it okay for me to do, move and act? यानी कि बच्चा यहाँ पे अगर autonomous हो चुका हुआ है तो यहाँ पे उसको validation चाहिए कि जो मैं कर रहा हूँ, is it okay to do, is it fine for me to do these things? यानी कि अब यहाँ पे भी अगर बच्चा autonomy develop कर चुका हुआ है तो यहाँ पे initiative की stage आ जाएगी। अगर बच्चा autonomous है तो वो initiatives लेगा। Initiatives basically add the autonomy। बच्चा जो है अपनी टास्क को समझता है कि मुझे ये टास्क करनी है या मुझे ये टास्क करना चाहता हूँ मैं। in such a scenario the child plans and does the task in a systematic way, और सिर्फ इसलिए कि वो दिखा सके कि yes I can do this thing, because वो exploring phase में है, बच्चा basic skills अपनी सीख रहा होता है उस टाइम पे, तो बच्चा शो करना चाह रहा होता है that this is what I can do and is it okay for me to do this। ठीक है, आपने बहुत दफा नोट किया होगा छोटे बच्चे बहुत सी चीजें उठा के पेरेंट्स के पास लाके उनको दिखाते हैं, उनको श्योरिटी मिलती है, एंड देन दे जस्ट स्टार्ट डूइंग एनीथिंग दैट दे वांटेड टू डू विद दैट पर्टिकुलर थिंग। तो वो इनिशिएटिव बेसिकली ले रहे होते हैं, और जब उनको एक बूस्ट मिलता है कि यस यू कैन डू दिस, तो वो बच्चे इनिशिएटिव ले लेते हैं। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल इसी तरह से कोई बच्चा नॉर्मली माँ बाप मना कर देंगे नहीं बेटा इस चीज से नहीं खेलना, इस चीज को नहीं छेड़ना, देन व्हाट हैपेंस दैट द चाइल्ड डेवलप्स अ सेंस ऑफ गिल्ट कि मे बी व्हाट आई वाज अबाउट टू डू वाज समथिंग वेरी रॉन्ग, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मुझे इस चीज को नहीं उठाना चाहिए था, एंड उसको ऐसे गिल्ट डेवलप होता है और बच्चा उस काम को करने से रुक जाता है। उसके अंदर एक सेंस ऑफ शेम ऑब्वियसली फिर डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है, व्हिच ऑब्वियसली लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन ओवर टाइम। ओके, यहाँ पे पर्पसिव बिहेवियर होता है। पर्पसिव एक्शन या पर्पसिव बिहेवियर का मतलब ये है कि व्हाटएवर द चाइल्ड वांट्स टू डू, व्हाटएवर द चाइल्ड इज डूइंग, उस एक्शन का एक प्रॉपर पर्पस है, बच्चे के पीछे एक थॉट चेन ऑफ थॉट्स है जो कि उस एक्शन को करने में अल्टीमेटली रिजल्ट कर रही है। ठीक है, द चाइल्ड ड्यूरिंग दिस स्टेज फेसेस द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपिंग अ सेंस ऑफ जजमेंट। अब इस स्टेज में चाइल्ड लर्न्स टू टेक इनिशिएटिव एंड प्रिपेयर फॉर लीडरशिप एंड गोल अचीवमेंट रोल्स। बच्चे रोल प्ले करते हैं बहुत ज्यादा इस एज में, बच्चे बताते हैं एक दूसरे के साथ खेलते हुए कि अच्छा नहीं रुको, आई विल टेल यू व्हाट टू डू। अपने सिबलिंग्स के साथ अगर वो बड़े हैं या वो छोटे हैं तो वो उनको डायरेक्ट कर रहे होते हैं। इस तरह के सारे इनिशिएटिव्स बच्चा लेता है इस एज में। Now guilt is a confusing thing, यानी कि वो first emotion बच्चे का होता है। They may feel guilty over the things that should not cause guilt, यानी कि बच्चे को आप sometimes आप नॉर्मल सी बात कर रहे होते हैं और बच्चा एकदम से रोने लग जाता है, एंड यू आर लाइक व्हाई इज द चाइल्ड क्राइंग, मैंने ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा, मैंने इसको डांटा भी नहीं है, रो क्यों रहा है। ठीक है, तो वो बेसिकली क्या होता है कि द चाइल्ड फील्स गिल्ट, और गिल्ट उसके क्योंकि एक न्यू इमोशन है तो बच्चे के पास एक्सप्रेस करने का एक ही तरीका होता है, आइदर द चाइल्ड विल गो फसी, या वो फस क्रिएट करेगा, वो गुस्सा एग्रेसिव हो जाएगा, या फिर वो रोना शुरू हो जाएगा। तो द चाइल्ड बेसिकली कैन फील गिल्टी जब वो कोई इनिशिएटिव ले और उसके जो रिजल्ट्स हैं वो उस तरह से ना आए जिस तरह से वो चाह रहा था, यानी कि उसके डिजायर्ड रिजल्ट्स प्रोड्यूस ना हो, तो चाइल्ड मे फील गिल्ट। एंड जो आपके ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं जहाँ पे उसको इनिशिएटिव लेना जरूरी है वो नहीं ले रहा, तब भी नेगेटिव बिहेवियर डेवलप होते हैं। चाइल्ड फील्स के यहाँ पे मुझे इनिशिएटिव लेना है और नहीं लेने दिया जा रहा है। ठीक है, now these behaviors are a result of the child developing a sense of frustration for not being able to achieve a goal as planned, and he may engage in behaviors that seem aggressive, ruthless or overly assertive to the parents. अब aggressive behaviors किस तरह से होते हैं, और चीजें उठा के बच्चे फेंकना शुरू करते हैं, मारते हैं, चीखते हैं, पीछे एकदम से गिरते हैं और इस तरह के aggressive behavior शो करते हैं। things that you can observe very easily in children of the state कि अगर उनको guilt की feeling आए या वो फ्रस्ट्रेटेड हो तो वो इस तरह के बिहेवियर्स को एक्सेप्ट करते हैं, जिनको जनरली हम टैंट्रम का वर्ड यूज करते हैं इसके लिए। ओके, नाउ स्टेज 4। नाउ स्टेज 4 इज फोकस्ड ऑन द स्कूल इयर्स, आपके स्कूलिंग के इयर्स इसमें आ जाते हैं 6 years to 12 years। इट इज इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी या सुपीरियरिटी की आप वर्सेस इंफीरियरिटी करते हैं। नाउ कैन आई मेक इट इन द वर्ल्ड ऑफ पीपल एंड थिंग्स। एरिक्सन का ये मानना था कि जो आपका मिडिल चाइल्डहुड होता है यानी कि 6 years to 12 years, दैट इज अ टाइम जहाँ पे आप बच्चा जो है वो इमोशनली स्टेबल होता है, उसकी स्कूलिंग स्टार्ट हो चुकी होती है, वो नई स्किल्स एक्वायर करना स्टार्ट कर लेता है। चिल्ड्रन जो है उनकी बहुत सी एक्टिविटीज होती हैं जिनको वो सीख चुके होते हैं, उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्योंकि हो चुकी होती है काफी हद तक, तो दे ग्रास्प द कॉन्सेप्ट्स दैट आर लॉजिकल, वो उनको अप्लाई करना सीखते हैं, वो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं, एनालिसिस डेवलप करते हैं अपना, एंड काफी कॉम्प्लेक्स स्किल्स यानी कि दे डेवलप
understanding of different activities and games. They develop different complex skills like reading and writing, और वो stories create करना जानते हैं. उनकी imagination जो है वो काफी strong हो चुकी होती है, उनकी morality काफी हद तक develop हो चुकी होती है. They develop moral values, यानी कि अच्छी बात नहीं है कि ये झूठ नहीं बोलना चाहिए, जिस इस तरह के बच्चों की moral values होते हैं. दे रिकग्नाइज कि कल्चर किस तरह का है, वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को भी समझना शुरू करते हैं कि मेरा जेंडर या मेरी सेक्स क्या है, मेरे आसपास के लोगों की क्या है, व्हाट आर दे सपोज टू डू, मेरे घर के ट्रेडिशंस किस तरह के हैं, मेरी सोसाइटी किस तरह की है, मेरा रिलीजन कौन सा है. इस तरह की सारी चीजें जो है वो डेवलप कर चुका होता है. यानी द चाइल्ड बेसिकली काफी कुछ वो अपनी अपना काम जो है जितने वो अपनी पर्सनल नीड्स को भी केटर कर सकता है, वो अपने आप को ग्रूमिंग भी अपनी कर सकता है, अपने कपड़े खुद बदल सकता है, वो अपने बाल खुद सेट कर सकता है, वो तैयार खुद हो सकता है, ही कैन ईट एंड फीड हिमसेल्फ. तो इस तरह के बहुत से काम होते हैं जो बच्चा खुद कर चुका होता है. यानी कि द चाइल्ड हैज डेवलप्ड अ जनरल सेंस ऑफ पर्सनल मास्टरी. Now, Erikson viewed the elementary school years as critical for the development of self-confidence. Now, this is something that develops during the school years. यानी कि बच्चा जो है एलिमेंट्री स्कूल्स में आपको बहुत ज़्यादा मिल रहे होते हैं अपॉर्चुनिटीज, जहाँ पे आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, आप अपने आप को रिकग्नाइज करवा सकते हैं बाय टीचर्स, बाय पेरेंट्स, बाय योर क्लास फेलोज. आप अपने आप को पिक्चर्स ड्रॉ करते हैं, आप डिफरेंट किस्म की लाइक आपकी बेसिक परफॉर्मेंस जो होती है इन योर स्कूल, इट बेसिकली एड्स ऑन टू द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस दैट यू आर गोइंग टू डेवलप. Now, if children are not encouraged to actively engage in the activities, they will generally not develop in superiority, या फिर उनके अंदर competency develop नहीं हो पाएगी. Now, what happens is generally आपने देखा होगा schools में हर किसी को participate करवाने की कोशिश की जाती है, so that every child can be molded, every child can be groomed, और बच्चे के अंदर किसी भी किस्म की inferiority जो है वो develop ना हो. ठीक है. Now, the child who does not receive any encouragement from parents or teachers, वो अपनी ability पे उनको शक होगा, तो उनको लगेगा कि maybe they cannot be successful, या they are someone who is going to fail in their life. As you can see in this picture, एक बच्ची जो है वो बहुत ज़्यादा एक अचीवमेंट काइंड ऑफ मोड में है, और जो दूसरा बच्चा है वो डिजेक्टेड किस्म के इमोशंस शो करता हुआ नजर आ रहा है. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन चिल्ड्रन दैट जनरली डेवलप्स इन द एलिमेंट्री स्कूल इयर्स. Then stage 5, identity versus role confusion. अब identity basically means कि मैं कौन हूँ, ठीक है, and मैं क्या क्या कर सकती हूँ, ठीक है, and role confusion उस टाइम पे आते जब आपको समझ ना आ रही हो कि आप कौन हैं, आप क्या हैं, what do you exactly want in your life. Now this is the time जो आपका teenage का कहलाता है, यानी कि 12 years to 18 years, जब आप एक young adolescent होते हैं. इसमें क्या है कि आपका अभी late childhood and transcending into the early adolescence. यहाँ पे एक एडोलेसेंस की बेसिकली क्या टास्क होती है कि उसने हर किस्म का कंफ्यूजन जो खत्म करना है, उसने अपने जेंडर को, अपने सेक्स रोल को आइडेंटिफाई करना है, अपनी सोसाइटी में देखना है कि उसकी क्या कमिटमेंट है सोसाइटी में, कि व्हाट इज द रोल दैट ही डिसाइड्स टू प्ले इन द सोसाइटी इन हिज लाइफ. क्योंकि उसको अब ये समझ आ चुकी है दैट ही हैज टू फंक्शन इन द सोसाइटी एंड ही इज द एजेंट ऑफ सोसाइटी. लेकिन उसने अपने आप को आइडेंटिफाई किस तरह करवाना है, वो आगे हेल्प करती है उसकी ईगो आइडेंटिटी जो बनना स्टार्ट हुई है फ्रॉम द टाइम ऑफ हिज बर्थ. अब उसके जो ओवरऑल एक्सपीरियंसेस है वो उस बंदे के लिए, उस बच्चे के लिए अपनी पर्सनल एबिलिटीज, अपने नीड्स, अपने डिजायर्स, उन सबको अपने सामने रख के वो सोचता है, वो सोचती है कि उसने जिंदगी में करना क्या है. लाइक फॉर एग्जांपल, यू आर जनरली एट द एंड ऑफ द स्टेज. आप इस टाइम पे सोच रहे हैं कि ओके, आफ्टर आवर इंटरमीडिएट व्हाट आर वी गोइंग टू डू इन आवर लाइव्स. someone wants to major in English, कोई टीचर बनना चाहता है, कोई रिसर्चर बनना चाहता है, कोई साइकोलॉजिस्ट बनना चाहता होगा. तो यू जनरली वांट टू सी कि आप क्या करना चाहते हैं, आप अपने आप को किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं अपनी सोशल एनवायरनमेंट के साथ, और आप उसके साथ अपनी लाइफ लॉन्ग में किस तरह से अडेप्ट करना चाहेंगे. नाउ बेसिकली fundamental virtue that arises from the identity crisis is the virtue of fidelity. यानी कि the sustained loyalty, faith and a sense of belonging to friends and companions, to a loved one, or a set of values, ideology, movement or an ethnic group. यानी कि आप अपनी आइडेंटिटी डेवलप कर रहे हैं, और फिडेलिटी या फाइडेलिटी का मतलब ये हो गया कि आपने अपना एक सिक्योर रिलेशन बनाया है, अपनी बिलोंगिंग, अपने आपके स्ट्रॉन्ग मॉरल वैल्यूज हैं. इस टाइम पे आपने जो बिहेवियर्स अडॉप्ट किए हैं दे आर फेथफुल. आप इसके अंदर अपनी रिलीजन को पहचानते हैं, आप अपनी आइडियोलॉजी को पहचानते हैं, आप पहचानते हैं कि आपके कल्चरल वैल्यूज क्या हैं, आप किस चीज़ को, आपका ज़िंदगी में एक तरह से मंशूर क्या है, और आप किस एथनिसिटी को बिलोंग करते हैं. ये सारी आपकी आइडेंटिटी को शेप अप करती है. तो आपका आइडेंटिटी क्राइसिस
तब होगा जब आपके अंदर ये वाली चीजें नहीं है, जब आप इन चीजों के साथ आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, तो फिर आप एक आइडेंटिटी क्राइसिस में पड़ जाएंगे कि यार मैं हूँ कौन, ठीक है। The thoughts, efforts, and concerns of the individual at this stage center mainly on making himself acceptable to the opposite sex or gender. An important developmental task is one the acceptance and learning of the roles, sexual roles and your gender roles. This comes hand in hand with the achieving of independence of parents and family, although this may have to be postponed at a later stage. यानी कि हम जनरल देखें सोसाइटी में तो at the age of 18 years the child is independent enough, the child is allowed to move out of the house और वो अपनी एक अलग से एक इंडिपेंडेंट जिंदगी अपने पेरेंट्स के बगैर गुजार सकता है लीगली, बट डिपेंड्स ऑन कल्चर्स। हमारे कल्चर में जिस तरह से नहीं होता, यू डू नॉट अचीव एनी इंडिपेंडेंस, लेकिन येस यू डू अचीव इंडिपेंडेंस इन अ वे कि आप अपनी लाइफ के अंदर जो वेरियस डिसीजंस हैं वो आप खुद ले सकते हैं, आपकी राय कंसिडर की जाती है, आप ये आइडेंटिफाई कर चुके होते हैं कि मैं आइदर am I a male or am I a female, और मैं एज अ फीमेल मेरे क्या रोल्स हैं लाइफ में, एज अ मेल मेरे क्या रोल्स हैं लाइफ में, एंड यू जनरली अडॉप्ट सर्टेन बिहेवियर्स जो कि आपको डिजायरेबल बनाते हैं दूसरी ऑपोजिट सेक्स के लिए या जेंडर के लिए। नाउ अब यहाँ पे आपका जो अगर आपके जो पेरेंटल रेगुलेशन है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो यहाँ पे जो आपके डेवियन बिहेवियर्स हैं, रिबेलियस बिहेवियर्स हैं, ड्रग्स यूज़ करना, स्मोकिंग करना, लड़ना भिड़ना, घर छोड़ के चले जाना, इस तरह के जो इश्यूज होते हैं वो नज़र आना शुरू होते हैं व्हेन द पेरेंटल रेगुलेशन इज़ वेरी स्ट्रिक्ट। यहाँ जहाँ पे आप एक ऐसा रिस्पेक्टफुल किस्म का रखते हैं रिलेशन विद योर चिल्ड्रन, जहाँ पे आप उनकी सुनते हैं, उनकी राय लेते हैं, उनको गाइड भी करते हैं, लेकिन उनके फैसले करने में उनकी राय को इम्पोर्टेंस दे रहे होते हैं, तो वहाँ पे जनरली आपका रोल कंफ्यूजन नहीं आता, आपके बच्चे के साथ आपका जो इन्फ्लुएंस है, जो आपका रिलेशन है वो स्ट्रॉन्ग बनता है, क्योंकि आपके म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, आप बच्चे को उसकी आइडेंटिटी को बनाने की स्पेस दे रहे हैं। अदरवाइज बच्चा अपनी आइडेंटिटी डेवलप नहीं करेगा, वो एक रिबेलियस और डेवियन बिहेवियर में इंडल्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। जिस तरह जनरली हम कहते हैं कि आप जितनी ज्यादा सख्ती करते हैं बच्चे पे, बच्चा उतना ही ज्यादा रिटेलिएट करता है। दैट इज बेसिकली व्हाट हैपेंस इन दिस स्टेज। Okay, the next stage, stage 6, is intimacy versus isolation. It starts from 18 or 20th year and goes on to the 40th year. Generally ये है कि जिस टाइम आप stage 5 में अपनी आइडेंटिटी डेवलप कर लेते हैं, जिस तरह कर लेंगे, आपकी इंटीमेसी की स्टेज या आइसोलेशन की स्टेज स्टार्ट हो जाएगी ना। बेसिकली यहाँ पे ये आपने डिसाइड करना होता है कि आर यू गोइंग टू लिव अलोन इन योर लाइफ, आर यू गोइंग टू लिव विद समवन, यानी कि कैन यू लव समवन, आप इंटीमेट रिलेशनशिप बना सकते हैं या नहीं बना सकते। अब जिस टाइम पे आपकी आइडेंटिटी बन चुकी होती है, इट बेसिकली आपकी आइडेंटिफिकेशन जिस तरह से आप अपनी करते हैं, दैट बिकम्स द फाउंडेशन ऑफ द स्टेज। यानी कि दे वांट टू जो आपके न्यूली जिस तरह आप हैं, आप कोशिश ये करते हैं कि आपके फ्रेंड्स जो हैं आप उनके साथ उनकी तरह की आदतें डेवलप करें ताकि आप फिट इन करें, आप उनको वो आपको पसंद करें, ठीक है। नाउ आपके यंग एडल्टहुड में आप देखते हैं कि आप ऑपोजिट जेंडर में थोड़ा सा अपना इंटरेस्ट शो करना स्टार्ट कर देते हैं, जो आप फिर इवेंचुअली यू डिसाइड टू गेट मैरिड, एंड जब आप शादी कर लेते हैं तो उसके बाद यू जनरली सी व्हाट इज द कोर्स ऑफ लाइफ नाउ, ठीक है। Then Erikson believed that a strong sense of personal identity was important to developing intimate relationships. हमने बात की है previously कि जहाँ पे जो चाइल्ड है वो ट्रस्ट डेवलप करता है, उसके इंटीमेट रिलेशनशिप्स जो हैं वो सिक्योर होते हैं, उनमें उसको ज़्यादा इश्यूज नहीं आते। लेकिन जो आपके वो लोग होते हैं जिनकी सेल्फ परसेप्शन, जिनकी ईगो आइडेंटिटी प्रॉपर तरीके से नहीं रिजॉल्व तरीके से नहीं हो गए, सॉरी रिजॉल्व नहीं हो पाई, दे हैव कमिटमेंट इश्यूज, वो रिलेशनशिप्स में सही से रह नहीं सकते, दे जनरली दे सफर फ्रॉम डिप्रेशन, लोनलीनेस, एंड वो इमोशनली अपने आप को आइसोलेट कर देते हैं। Whereas जो जिनकी सिक्योर बनती है अटैचमेंट, जिनके सेंस ऑफ सेल्फ जो है वो प्रोमिनेंट है, वो अंडरस्टैंड करते हैं अपने आप को, दे हैव गुड कमिटमेंट्स। Then Erikson believed that we are sometimes isolated due to intimacy, यानी कि we are afraid of rejections, हम नहीं चाहते कि हमें कोई बंदा रिजेक्ट करे, या हम नहीं चाहते कि कोई हमें छोड़ के चला जाए। इसकी वजह से हम because we do not want to get in that feeling of pain, we do not want to go through that kind of a rejection, and that is why हम अपने ego boundaries क्योंकि हमने strong बना ली होती हैं by that time, our egos cannot bear the pain, that is why we tend to choose being alone rather than getting intimate with someone ताकि हमें rejection face ना करना पड़े। The seventh stage, generativity versus stagnation, it is basically आपका जो middle
एज आपकी आती है फ्रॉम ईयर 40 years to 60 years, यानी कि अब इस टाइम पे नाउ दिस इज द टाइम पीरियड जहाँ पे आप अपनी लाइफ में फुल ऑन एफर्ट्स लगा रहे होते हैं. कैन आई मेक माई लाइफ काउंट? यू हैव एस्टैब्लिश्ड योर रिलेशनशिप्स and now you are going to focus up being mature adult. Now you are going to guide the next generation. अब next generation का मतलब ये नहीं है कि आपके ही बच्चे हो चुके होंगे और आप उन बच्चों को ही गाइड करेंगे. It can be a profession that you have taken up. It can be a responsibility that you have taken up. It can be a social role. You can either be a teacher, you can either be working in any kind of ऑर्गेनाइजेशन दैट गोज लाइक दैट. यानी कि अब इस स्टेज पे जनरेटिविटी का मतलब ये है कि आप प्रोडक्टिव हैं, आप क्रिएटिव हैं, आप लोगों को आगे लेके चल रहे हैं. यानी कि पीपल्स इम्पल्स टू फोस्टर द डेवलपमेंट ऑफ द यंग इज नॉट लिमिटेड टू गाइडिंग देयर ओन चिल्ड्रन, कैन बी एक्सप्रेस्ड थ्रू सच एक्टिविटीज एज टीचिंग एंड mentorship. The virtue that develops during this stage is to develop the sense of care. ठीक है, इस टाइम पे आप जो कुछ कर रहे होते हैं आप किसी और के लिए कर रहे होते हैं. You are very much productive and creative just so you can be generative. अब यहाँ पे अगर आप stagnate कर जाएं, चलें, we'll get to that later. हम पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि आपका जो डेवलपमेंटल टास्क है, it is contributing to the society and helping to guide the future generation. आप जिस टाइम पे ये कर रहे होते हैं, it basically results in a sense of accomplishment. लेकिन अगर आप स्टेगनेशन की तरफ आ जाते हैं, if you are self centered और आप लोगों को हेल्प नहीं करना चाहते, आप सोसाइटी में उस तरह से अपना रोल प्ले नहीं कर रहे, you are doing only what you did for your own self, यहाँ पर dissatisfaction आई. यानी कि for example, me being a teacher right now, I have been done with my personal growth. मेरी personal growth हो चुकी हुई है. I have achieved a particular career. I'm done with my education for now. And when I am teaching the students, I'm not being self-centered. I'm being a teacher. I'm being a mentor to them. ठीक है, यानी कि मेरे actions, मेरी वजह से कोई कुछ सीख रहा है, तो I have a sense of achievement कि मेरी वजह से someone is progressing in life in one way or another. लेकिन अगर मैं नहीं कर रही इस तरह से, if I'm just sitting idly at home, I'm not contributing to the society, it will generally result in a sense of dissatisfaction क्योंकि मैं productive नहीं हूँ. I am not making a productive use of whatever I am. ठीक है. Then psychological stage number 8, psychosocial stage 8, sorry, this is the last stage. It is integrity versus despair, यानी कि from the 60th year of your life, यानी कि जिसको हम generally retirement age कहते हैं, till the death. Now this is the time period जहाँ पे आप evaluate करते हैं. You evaluate your life, यानी कि is it okay, was it okay to have been me, यानी कि जिस तरह से मैंने अपनी जिंदगी गुजारी है, was it done in the right manner or not. यानी कि अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे older people, they start confronting themselves, यानी कि जिस तरह से उन्होंने जिंदगी गुजारी है, was it good, and did they accept the way they spent their lives. The virtue that develops during this stage is wisdom, यानी कि an informed and detached concern with life in the face of death itself. यानी कि आपको अब जिंदगी से ज्यादा लेना देना नहीं होता. You know that death is an inevitable reality and किसी भी time it can knock at your door. And यहाँ पे आपका क्या होता है कि you are, आपको जो वो गमे दौरान जिसे कहते हैं वो चीज़ नहीं होती, आपको कमाने की टेंशन नहीं होती, आप उस चीज़ से निकल चुके होते हैं मोस्टली. एंड यू एक्वायर विजडम, यानी कि इट इंक्लूड्स द एक्सेप्टेंस ऑफ द लाइफ वन हैज लिव्ड. जो भी रिग्रेट्स थे, जो भी हो सकता था या नहीं हो सकता था, उस सबको आप एक्सेप्ट करते हैं. आप अपने पेरेंट्स को एक्सेप्ट करते हैं कि उन्होंने जो कुछ किया आपके लिए, दैट वाज व्हाट दे कुड हैव डन, यानी दे आर वर्दी ऑफ लव. एंड चाहे वो बेशक परफेक्ट नहीं भी हैं. अब जिस तरह लाइक वेरी स्टेज पे जब आप पेरेंट्स होते हैं एट दिस स्टेज, तो आप ये वाला बिहेवियर शो करते हैं. अब इसी तरह से आप अपने बिहेवियर्स जो आपने अपनी लाइफ में किए होते हैं, आप उस तरह से उनको एक्सेप्ट करते हैं. Now, if you are successfully completing this particular stage, so it results in integrity, and if it doesn't, it results in despair and depression. Integrity का मतलब ये है कि आप एक्सेप्ट कर जाते हैं कि आपने जो कुछ किया, that was the best possible thing that could have been done. And despair basically means कि आप फिर उस चीज की वजह से परेशान हो जाते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी के साथ किया क्या है, what could have been done instead of this. ये बहुत अच्छी तरीके से गुजारी जा सकती थी, मैंने शायद अपनी जिंदगी ज़ाया कर दी है. एंड द रिलेटिव थॉट्स दैट you can assess. As we grow older and become senior citizens, we tend to slow down our productivity and explore life as a retired person. It is during this time that we contemplate our accomplishments and are able to develop integrity if we see ourselves as leading a successful life. The final developmental task is retrospection,
People look back on their lives and accomplishments. They develop feelings of contentment and integrity if they feel that they have led a happy and productive life. Yani ke they feel satisfied with whatever they have done over the time of their life. And if we see our life as unproductive or feel that we did not accomplish our life goals, we become dissatisfied with life and develop despair, often leading to depression and hopelessness. Now, if I quickly overgo these stages, हमने basically starting from the first one, तो you may be very easily आप इसको देख सकते हैं कि अगर आपकी stage 1 पे the trust that a person develops, it is very much important in how a person is going to develop his personality. अगर trust develop होगा तो बच्चा autonomous होगा. अगर मिसट्रस्ट डेवलप होगा तो बच्चा जो है वो शेम की साइड पे चला जाएगा. अगर वो ट्रस्ट डेवलप हुआ है पहले लेकिन एट दैट पर्टिकुलर स्टेज वो मिसट्रस्ट में कन्वर्ट होता है तो बच्चा ऑटोमेटिकली शेम में जाएगा, शेम की साइड पे जाएगा एंड वो मिसट्रस्ट डेवलप कर लेगा. सो एवरी स्टेज बेसिकली इज रिलेटिव टू वन अनदर. इस तरह ऑटोनॉमी जब डेवलप कर लेगा बच्चा तो वो खुद से इनिशिएटिव लेना शुरू करेगा. लेकिन अगर वो बच्चा जो है वो शेम की साइड पे रहेगा तो द चाइल्ड विल maintain that sense of guilt in the psychosocial stage 3 unless कि उसको autonomous बनाया नहीं जाएगा. Like basically if you have not completed one stage successfully, it overburdenizes the next stage. अगर आपका कोई एक फॉर एग्जाम्पल योर आइडेंटिटी हैज नॉट बीन डेवलप प्रॉपर्ली, तो जब तक आपकी आइडेंटिटी डेवलप नहीं होती यू कैन नॉट चूज बिटवीन आइसोलेशन और इंटीमेसी. यानी कि प्रॉबेबली जिस टाइम आपकी आइडेंटिटी डेवलप हो रही होती है, इफ यू आर इन अ रोल कंफ्यूजन, आप जब तक उस एक पर्टिकुलर क्राइसिस को, उस एक पर्टिकुलर माइलस्टोन को अचीव नहीं कर सकते, आप जब तक उसको ओवरकम नहीं करते, यू कैन नॉट मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. आप दूसरी स्टेप नहीं जा सकते. तो दैट इज हाउ योर जो आपकी फुल साइको सोशल डेवलपमेंट है, दैट इज हाउ इट प्रोग्रेसेस फ्रॉम योर लाइफ टू योर, फ्रॉम बर्थ टू योर